Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine and you are safe at home. Okay, let us continue the chapter number 15. We have already completed features of developing economy, right? Now our next topic is economic and non-economic development. Now let us start here. Now when we talk about economic and non-economic development, before studying about Indian economy, let us know what economic and non-economic activities are. Now, when we talk about economic activities, like what do mean by economic activities? Now, economic activity means earning or spending money for the exchange of commodity or services. It means कि अगर हम कोई भी शॉप में गए और वहाँ पे कोई गुड्स हमने परचेज की, तो इन रिटर्न ऑफ दैट गुड्स विच वी गॉट, we are paying money, right? It means that we are spending money for the exchange of commodity, that is goods or the services. For example, if you are traveling in bus or train, then जो आपको सर्विस मिली है उसका आपने पेमेंट किया है, राइट? उसकी आपने टिकट ली है, तो दैट इज economic activity, which means that earning or spending money for the exchange or commodity or services is called as economic activity, right? So you have to remember here. Example is activities of a farmer, artisan, businessman, teacher. This all comes under economic activity. Okay. Now, when we talk about non-economic activity here, then what is non-economic activities? Activities that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are called non-economic activities. It means के जब एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हेन मदर इज़ नर्चरिंग अ चाइल्ड, इट मीन्स कि जब एक चाइल्ड बॉर्न हुआ और तब से उसको जब बड़ा किया उसकी मदर ने, तो मदर इज़ नॉट टेकिंग एनी फीस फ्रॉम हर चाइल्ड, राइट? बिकॉज इट इज़ हर ड्यूटी. जब हमने कोई काम किया और उसके सामने कोई पेमेंट नहीं मिला, तो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटीज़ डन बाय सोशल वर्कर, मतलब जो एक्टिविटी हो रही है जिसमें एम नहीं है टू अर्न इनकम, राइट? तो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, बहुत सारे सोशल वर्कर NGOs have already started. Example is given: nurturing of a child by the mother, activities of a social services. Here you can see by a social worker. This all comes under non-economic activities. See here you can see the social services. So that was economic and non-economic activities. I hope that you have understood about economic and non-economic activities. Now this can be asked for 2 marks, right? For difference between, so you have to write down the difference between. In first point you can write the definition, and in second point you can write the point that economic activity, the main aim of economic activity is monetary gain, but in non-economic activity just it is not the aim of monetary gain, we are doing social work. And in third point you can write the example. Okay, now next move further, that is the structure of Indian economy. As we already know that various occupation and economic activities जो है they are classified into 3 sectors. Okay, 3 sections में उसको divide किया है. So यहाँ पे मैं थोड़ा फिर से बैक ले जाती हूँ that यहाँ पे जो structure of Indian economy है, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड. जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या ऑक्यूपेशंस जो है दे आर क्लासिफाइड इन 3 सेक्शंस. फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज़ सर्विस सेक्टर. अब प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है मतलब उसमें आ जाएगा एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो सब प्राइमरी सेक्टर में आएंगे. यहाँ पे स्टिल अभी भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस सेक्टर दिख रहा है, राइट? अब आया प्राइमरी सेक्टर कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ जैसे कि कैटल रेयरिंग है, कैटल ब्रीडिंग है, सी कैटल ब्रीडिंग, देन ये फिशिंग है, देन पोल्ट्री फार्म दिख रहा है आपको, फिर कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल है. दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर. ओके, इस प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड होगा ये सब, राइट? देन व्हेन वी टॉक अबाउट दी सेकेंडरी सेक्टर, तो यहाँ पे देखो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दिख रही है, देन फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी,
गैस एंड वाटर सप्लाई, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इट मीन्स कि सेकेंड सेक्टर में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है वो सेकेंडरी सेक्शन में आएगा। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में हमने प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉटन जो प्राइमरी सेक्टर में ग्रो हुआ, राइट, इट इज़ एन एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रोन, राइट। तो अब ये कॉटन हम डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब स्मॉल एंड लार्ज स्केल फैक्ट्रीज में, और वहाँ पे प्रोसेसिंग विल बी डन और उसमें से कॉटन क्लॉथ बनेगा, तो दैट विल कम इन सेकेंडरी सेक्टर। नाउ this section is also known as industry, which includes production from small pins to gigantic machines, मतलब छोटे पिन बनाने से लेकर बड़ी स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल मशीन्स है, वो सब इन सेकेंडरी सेक्टर में। अब सर्विस सेक्टर स्टार्ट हो गया। ट्रेड है, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, देन एजुकेशन, हेल्थ, banking and insurance, then tourism and entertainment, these are included in service sector. Understood? सर्विस सेक्टर में यहाँ पे कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होने वाले हैं, यहाँ पे जस्ट सर्विस इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू द पीपल, सर्विस जो है वो प्रोवाइड होगी पीपल को। एक्चुअली अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री में नॉर्मली प्राइमरी सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है बिकॉज ऑफ प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो फास्ट नहीं हो रहा है। क्यों डेवलपमेंट फास्ट नहीं हो रहा है? इट इज़ जस्ट बिकॉज कि प्राइमरी सेक्टर में दोज हु आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, तो उसमें से जो इनकम जनरेट हो रही है दैट इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सो हमें पता ही है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है एंड उसके वजह से नेशनल इनकम में भी बहुत इफेक्ट करता है। सो हियर लेट अस सी हियर, however there is a rise in economic development, significance of primary sector decreases in comparison to secondary and service sector। से अगर हम प्राइमरी सेक्टर को कंपेयर करें तो more importance is given to industrial and service sector because nowadays it is more important, right? And when we talk about कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें हम, तो उसमें सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर ये दोनों सेक्टर का इम्प्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, तो इट इज़ पॉसिबल कि हमारी कंट्री जल्दी डेवलप हो सकती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ प्रोडक्शन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबरर्स, राइट। हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, लेबरर्स की ज़रूरत होती है हमें। प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन मतलब कुछ भी ग्रो करना है तो उसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेज और लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट टूल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, जैसे कि बुलक कार्ट है, ट्रैक्टर है, सिकल है, लेबर है, लैंड है। दिस आर ऑल एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज़ लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये लैंड मतलब अगर हमें जहाँ पे भी प्रोड्यूस करना है, कुछ भी फैक्ट्री हो या जो भी हो, तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए। देन सेकंड इज़ कैपिटल, मतलब पैसे की ज़रूरत हमें पड़ेगी, राइट। देन थर्ड इज़ लेबर, लेबरर्स के बिना तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब वर्कर्स भी होने चाहिए ना टू वर्क। देन इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? अ पर्सन हु मैनेजेस लैंड, कैपिटल, लेबर, मतलब वो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करेगा एंड ओन्स दैट थिंग, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट इट, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अब यहाँ पे आया लैंड के बारे में कि नॉर्मल सेंस जो लैंड है वो अपर लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ है, राइट। सरफेस ऑफ द अर्थ का अपर लेयर है वो लैंड है। बट इकोनॉमिक्स में लैंड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है, मेटल्स, दे आर प्रेजेंटेड ऑन द अर्थ सरफेस। फिर मेटल्स है, ये सब जो है वो इंक्लूड होता है लैंड में। सो नेचुरल टूल है प्रोडक्शन के लिए कि दिस आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, राइट। अब कैपिटल की बात करें तो मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स है, टूल्स है, हाउसेस है, ये सब कैपिटल में आएगा। देन प्रॉपर्टी, असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब जो है वो कैपिटल में आएगा। ओके, नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द लेबर, मतलब मेंटल और फिजिकल वर्क जिसका एम होगा टू ऑब्टेन मॉनिटरी गेन, हमें पैसे अर्न करना,
एंड लेबरर्स इज कॉल्ड अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि वर्क ऑफ फार्म वर्कर्स, लेबरर्स जो है वर्कर्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, आर्टिसंस जो है इनको हम लेबरर्स कहेंगे, दोज हु आर वर्किंग एट द स्मॉल लेवल, राइट। अब लास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ये तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो कंबाइन कर रहा है, जैसे कि लैंड, कैपिटल और लेबर को हैंडल कर रहा है, तो दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। एंड द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो तीन को हैंडल करे वो एंटरप्रेन्योर। एंड द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करना, तो दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। अंडरस्टूड? सो दैट वाज ऑल अबाउट द factors of production. We will continue the next part in the next lecture. I hope you have understood the lecture. We will continue in the next lecture. Thank you for watching my video.